मास्क उतारो, आई थिंक इट्स, हाँ, शुरू हो गया, सॉरी। मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है, नमस्कार। आज मैं है तुषार गुप्ता जी के साथ। तुषार, शुड आई कॉल यू तुषार जैन और तुषार गुप्ता? गुप्ता। ओके, तुषार गुप्ता जी के साथ, आप सब इनको जानते हैं। आज हम बात करेंगे पार्लियामेंट में क्या हुआ और रोज क्या होता आ रहा है। तो हाय तुषार। Hi. Thank you for having me. एंड थैंक यू फॉर अग्रीइंग टू कम, बिकॉज़ मैं तुम्हारी जान खा गई थी, बट इट्स ओके। अच्छा तुषार, आप जो पार्लियामेंट में स्पीचेज़ हुई हैं ना, विल डू अ क्विक थिंग। जो पार्लियामेंट में स्पीचेज़ हुई हैं, आप 10 में से कितने देते हो? फर्स्ट ऑफ ऑल टू राजनाथ सिंह जी। Stellar 10. ओके, जयशंकर जी। 10. वाओ! अमित शाह जी। Hey, क्या मतलब has उनको to क्या be 10. देते? हाँ, एंड तो साथ में अनुराग ठाकुर। Oh, I love an acronym he created, Islamabad National Congress. So definitely a 10. एंड राहुल ऑक्यूपाइड कांग्रेस टू, एलओसी, आरओसी। Rahul Gandhi also I'll give a 9. Gaurav Gogoi I'll also give a 9 because both the times these people spoke, कुछ मिलियन वोट्स तो बीजेपी में जुड़ ही गए होंगे। आज राहुल गांधी का जैसा बॉडी लैंग्वेज था बोलते हुए, उसी the के बारे kind में of मैं बात कर aggression, the kind of desperation he showed. I रहा mean, हूँ। a lot of fence sitters in their heads would be convinced that this is not the guy to lead India. So I was speaking to excuse me, someone and huh, Tushar, 1 minute. I first, before we start talking about Rahul Gandhi, I want to read the tweet you tweeted something. yeah, You said, as I always tell Kushal Mehra, always let Rahul Gandhi speak. The more he speaks, the more he reveals himself, and by doing that, he accelerates the downfall of the Congress. Good riddance on the cards. Now you talk about absolutely. Rahul Gandhi. No, I am actually very firmly of that opinion that let Rahul Gandhi speak. Because he's never going to make sense. The only thing that changes is his body language. It has gone from somewhat subtle in the past to very, very desperate. You should have seen today how he was banging the parliament table, and he was even called out by the speaker कि भैया ये पार्लियामेंट की संपत्ति है, इसको आप तोड़िए मत। फिर उस संपत्ति को सहला रहा था वो। बट राहुल गांधी का प्रॉब्लम ये है, देखिए इलेक्शन तो हार ही रहे, बिहार का भी रिजल्ट कहीं ना कहीं नोन है ऑलरेडी। ओपिनियन पोल्स जो दिखा रहे हैं, it's already known that Congress to at least it won't have anything to gain out of it. हरियाणा, महाराष्ट्र, दिल्ली में जो झटके लगे हैं लोकसभा के बाद, तो वो जो लोकसभा की भी एक टेम्पररी खुशी थी वो जा चुकी है। अगले साल तमिलनाडु में that's again something that the DMK and AIDMK will figure out. Bengal, it's again versus TMC versus the BJP. Assam में they have a fighting chance, but Gaurav Gogoi doesn't have that reputation. तो एक पॉइंट के बाद ना वो डेस्परेशन दिखने लगती है, जो आज राहुल गांधी के चेहरे पे दिख रही थी। आप याद करिए कैसे लोकसभा के इलेक्शन के बाद पार्लियामेंट में कितनी एरोगेंस दिखा रहा था कि हमने नरेंद्र मोदी का कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है, हमने उनकी साइकोलॉजी पे वायर किया है, बहुत कुछ बोला था कि हम आपको गुजरात में हराएंगे, यहाँ हराएंगे, वहां हराएंगे। दीपेंद्र हुडा तो मान के बैठा था कि हरियाणा में तो क्या क्लीन स्वीप होगा। All that has changed in the last 1 year. A lot has changed. So that is why I genuinely insist let Rahul Gandhi talk. जो ये बच्चे हैं ना आजकल के 19, 20, 21 साल के, जिनको नहीं पता मोदी के अलावा कुछ, because they were probably 9 or 10 when Modi took over, they should know what kind of opposition we have. And once you listen to Rahul Gandhi, sometimes you also feel that if the opposition is going to be like this, शायद चाइना ही अच्छा जहाँ सिंगल पार्टी सिस्टम है। क्योंकि आज जो ऑपोजिशन की एक भाषा थी, एक अप्रोच थी, very disappointing, even from the Samajwadi. I mean, for a party that has 30 odd seats in the parliament, चलो आप रीजनल पार्टी हो, आपका यूपी के बाहर कोई चांस नहीं है कहीं भी, बट थोड़ा तो मेच्योरली एक्ट करो। कांग्रेस तो डूब रही है। 10 साल अगर भाजपा सत्ता में रहती है 2034 तक टू 2034, Congress will start falling like the communist, reducing itself to very few pockets. तो यही है अभी। और आज आपने राहुल गांधी को सुना, भूसा और क्या झापड़, these kind of words he was using in the parliament. He also had a slip of tongue, Yeah, which he said which fuck fighting.
पर वही है ना, जब आप डेस्परेट होते हो तो आप ऐसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हो। आप क्या बोल रहे हो, कैसे बोल रहे हो, आपको कुछ समझ नहीं आता, आपका पॉइंट क्या, आपको कुछ समझ नहीं आता। वो कह रहे हैं हमारी डेटरेंस क्या है, हम पाकिस्तान को कह रहे हैं अगर तुम हम पर हमला करोगे हम तुम पे हमला करेंगे, तो इसी को तो डेटरेंस कहते हैं। दैट इफ यू हिट अस वी विल हिट यू बैक डिस्प्रोपोर्शनेटली एंड वी हैव प्रूव्ड दैट वी कैन। But Rahul Gandhi is someone, I think he's way beyond redemption now, political redemption at least. He doesn't understand all this. He's not equipped, I think, to understand all this. The kind of IT cell he has with Supriya Shrineth and Pawan Khera at the helm of it, they संदीप से just are, they are incompetent. They are, all of them are incompetent. That's the word I would use for them. They are genuinely incompetent. They used to have this another IT cell head back in the day, I think before 2019 or 2024. 2019. I forget her name. Ramya, I think, if हाँ I'm not रामया getting it. Ramya, right? She still had या certain acumen to, run a narrative. What these clowns are doing right now, one really doesn't know. But again, I'm glad. As long as these people speak, the country will choose the better party, and that's all I want. एंड अब आते हैं हम प्रियंका गांधी पे। वो बार-बार ये कह रही थी कि आई डोंट वांट टू टॉक अबाउट द पास्ट, लेट्स टॉक अबाउट द प्रेजेंट। भविष्य वो वर्तमान की बात करते हैं, पुराने की बात नहीं करते हैं भविष्य में क्या हुआ। एंड राहुल गांधी ये सब बोलने के बाद राहुल गांधी फिर इंदिरा गांधी सो दे कांट मेक अप देयर माइंड। आई डोंट नो हु इज गाइडिंग देम। नो, प्रॉब्लम इज जब इतिहास पे सवाल आते हैं, बोथ द सिबलिंग्स आर क्लूलेस। ये 71 को हाइप करते रहते हैं, 71 वॉर, 71 वॉर। एक सच्चाई ये भी है that in Bangladesh we did not fight a very prolonged war. We entered Bangladesh around 4th or 5th of December and we were having a surrender by 16th December. The majority uprising in Bangladesh or East Pakistan by then had already happened. But again, it was a war won by the Indian Armed Forces decisively, very well done. But what happened after that? उसकी कोई बात नहीं करता। ये ना एक मिथ है जो टूटना चाहिए। 93,000 prisoners of war, चलो कोई कहेगा कन्वेंशन है, उनको छोड़ना ही था। What did you trade for them? आपके पास पाकिस्तान का इतना कैप्चर्ड टेरिटरी था, आपने कश्मीर पे कोई फाइनल सोल्यूशन नहीं निकाला। उस टाइम के अगर आप अखबार के रिपोर्ट्स निकालो तो वो कहते हैं दैट इंदिरा गांधी वाज होपिंग फॉर द लाइन ऑफ कंट्रोल टू बी द लाइन ऑफ पीस। मतलब आप उसको एक्नॉलेज कर रहे थे कि एलओसी अब हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है, एंड यू वर acknowledging the existence of Pakistan occupied Kashmir, which Pakistan refers to as Azad Kashmir. So, what did you really gain by the victory of 1971, which was the result of the bravery of the Indian Armed Forces? Absolutely nothing. Prisoners of war वापस भेज दिए, territories वापस 681 भेज दी, प्रिजनर्स ऑफ वॉर थे। हमारे जो उनके पास जो पड़े थे वो वो नहीं आए। 681 नहीं, और नहीं हाँ, उसमें से आए पर 54 को वहीं छोड़ दिया। हाँ। अच्छा, एक चीज आज प्राइम मिनिस्टर ने भी इंटरेस्टिंग बोली, कहते हैं आप सब कुछ वापस कर ही रहे थे, करतारपुर साहिब पे भी तो नेगोशिएट कर लेते। I mean, that's just 3 kilometers from the international border of Punjab, and our forces were pretty inside Pakistan. But वही है ना, हिस्ट्री इज वेरी intolerant towards the कांग्रेस, क्योंकि हर डिकेड में कुछ हुआ है। 50s में आपकी इकोनॉमिक फाउंडेशंस ले की गई, वो बर्बाद। 60s में हाउ इंदिरा गांधी टुक ओवर, what was the condition of the 5-year plans, that will come into question. 70s was all about how you dealt with Pakistan and the newly formed country of Bangladesh. 60s was also about the China war, by the way. Then 80s आ जाता है, आपने देश का क्या हाल कर दिया, आफ्टरमाथ ऑफ द इमरजेंसी, पंजाब में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है। फिर 90s में आपने क्या इकोनॉमिकली हाल करा। ये सब एक हर एक डेकेड पे ना, अगर मेरा बस चले मैं तो हर एक डेकेड पे एक अच्छी खासी प्रोडक्शन बजट को उठा के एक वेब सीरीज बनाऊं और बच्चों को दिखाएं। जैसे नेटफ्लिक्स वालों ने वो क्राउन बनाया था ना, ऑन द फैमिली ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। कांग्रेस की भी ऐसे बननी चाहिए कि 50s 60s 70s 80s 90s until 2014 what they were doing। बट वही है, अभी ना बच्चे आजकल किताबें पढ़ते हैं और ना ऐसी चीजें को इन्विजन करता है। नहीं, पर अब आप मुझे एक बात बताओ, ये अब राहुल गांधी ने ये सब बोला, पर उन्होंने गोगोई को भी क्या-क्या स्पीच किसने लिख के दी, दे डोंट चेक, एंड व्हेन गोगोई वाज गिविंग द स्पीच, ऑपरेशन महादेव वाज गोइंग ऑन, ही वाज नॉट अवेयर ऑफ दैट।
उसके Which तब is surprising. Which is क्या हुआ? surprising. उनके पास रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रहा है. The funniest thing गोगोई said was कि हमारा प्लेन पास जाके क्यों नहीं मारता. उसको लग रहा है ये कोई ना बच्चों का टॉय गन है कि आप पास से जाके मारोगे तो ज्यादा जोर से लगेगा. अब जब ऑपोजिशन का एक्यूमेन ही ऐसा हो, आईक्यू इतना हो, आप हंस ही सकते हो उन पर, और आप इस बात का थोड़ा मतलब दुख मना सकते हो कि ये हमारा ऑपोजिशन है. ये जो नोएडा में मीडिया में कुछ एंकर्स है ना, चिल्लाते रहते दिन रात, वी नीड एन ऑपोजिशन, वी नीड एन ऑपोजिशन. ऐसा ऑपोजिशन तो हम नहीं डिजर्व करते, टू बी ऑनेस्ट. नहीं, और ये जितने नेपो किड्स हैं, चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, इवन वो दैट हम्म. व्हाट्स हर नेम, परिणीति शिंदे, हम्म. व्हाट्स हर, शी आल्सो हाँ, लाइक हाँ, पर व्हाट काइंड ऑफ स्टेटमेंट डिड शी पास कि ये एक मीडिया के लिए ऑपरेशन तमाशा था, ये ऑपरेशन सिंदूर एक, मतलब तो व्हाट्स वही रॉन्ग? ना, देखो, मैं डे वन से चीज हर डिबेट पे बोल रहा हूँ कि ये तो आप भूल जाओ कि कांग्रेस और बीजेपी कभी सेम पेज पे थे ऑपरेशन सिंदूर पे. देयर वाज नेवर एनी बाय पार्टिसनशिप. आज अगर वो एक्नॉलेज करते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर कितना बड़ा सक्सेस था, तो वो कहीं ना कहीं ये भी एक्नॉलेज उन्हें करना पड़ेगा कि उनकी कितनी इनकॉम्पिटेंस थी 2004 और 14 के बीच, कि वो किसी चीज का रिस्पॉन्स नहीं दे पाए. पर वो उस चीज को भी एडमिट तो कर नहीं सकते. आज वो खड़े होकर बोल रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर है, सरकार की जिम्मेदारी है. बिल्कुल है, पर सरकार ने फिर आपको रिजल्ट्स भी डिलीवर करके दिए हैं. सरकार ने आपको पूरे टेरर अटैक्स पे अटैक किया, आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है जो पाकिस्तान में, उस पर अटैक किया, पहलगाम के मास्टरमाइंड उनके आतंकवादियों को भी उखाड़ फेंका. तो उस चीज की अगर जिम्मेदारी है फेलियर की, तो जो बाद में रिस्पॉन्स है उसकी जिम्मेदारी भी सरकार की है ना. इट कांट बी सिलेक्टिव. बट वही है, कांग्रेस विल ऑलवेज चेरी पिक. दे ऑलवेज ट्राई टू प्रूव दैट इंडिया इज ऑन द बैक फुट. अभी मैंने एक ट्वीट डाला कुछ देर पहले ना पॉडकास्ट से कि आपने अब दोनों पक्षों को सुन लिया ऑपरेशन सिंदूर पे, यू हाँ, हर्ड बोथ आई द रेड दैट, साइड्स. हाँ, आपको अगर कोई कहे कि इंडिया का पॉलिटिकल ऑपोजिशन कॉम्प्रोमाइज्ड है, आप क्या उस बात को मानोगे? इट्स एन ओपन क्वेश्चन टू द पीपल या ट्रू, अक्रॉस स्पेक्ट्रम. सब कह रहे हैं मान लेंगे, क्योंकि ऐसी बातें सुनकर. अब गौरव गोगोई देखो क्या बोला कल, कहता है 21 टेरर साइट्स की लिस्ट थी, 9 पर ही क्यों मारा. जिसने ध्यान से मिलिट्री ब्रीफिंग सुनी है, ओह खुद गॉड, मिलिट्री के सीनियर ऑफिसर्स ने कहा था कि वी न्यू दैट दीज 12 स्पॉट्स विल हैव बीन वेकेटेड बिकॉज दे वर आल्सो एंटिसिपेटिंग एन अटैक. ट्रू, बट ये जो एक डेस्परेशन आ गई इनमें कि प्रूव करना है इंडिया इज ऑन द बैक फुट. अब ये पाकिस्तान का नैरेटिव चला रहे हैं, चाइना का नैरेटिव चला रहे हैं, डीप स्टेट का नैरेटिव चला रहे हैं, जो भी है, जिसका भी नैरेटिव चला रहे हैं, लोग इनसे सहमत नहीं है. शायद इनके खुद के पार्टी के लोग इनसे सहमत नहीं है. एंड दे रियलाइज दिस वेरी वेरी सून. या क्योंकि आई रेड पल्लवी घोष's ट्वीट, शी हम्म. उसने लिखा है उसमें कि वन ऑफ द कांग्रेस एमपी वाज सेइंग दैट बहुत ही रॉन्ग स्टेप है राहुल गांधी का, प्रियंका गांधी का, पीएम मोदी से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में क्वेश्चंस पूछना और उनके ऊपर डाउट क्रिएट करना एंड वो पार्लियामेंट में डिस्कस करना. कहते हैं व्हाट यू, आपने तो एक ऐसा वेपन दे दिया मोदी जी को, ही डिमोलिश्ड देम नहीं, टोटली. पर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में उतनी अकल नहीं है, ये बात हमें माननी पड़ेगी. दीज आर टू स्पॉइल्ड किड्स हु हैव बीन brought up with this notion in their heads that they were born to rule India. एंटाइटल्ड. Entitled on entitlement on, steroids of nepotism. Okay, they don't have that acumen. I'm sorry, they don't. They just don't. Today, people run their residential welfare associations way better than these both run their parties. It's that simple, right? So these factors cannot be sort of denied. These factors cannot be unaddressed. But again, वो कांग्रेस एमपी छुप छुप के जर्नलिस्ट को बोल रहा है कि गलती कर दी, गलती कर दी. किसी कांग्रेस एमपी में ये हिम्मत क्यों नहीं है कि वो सामने बोले कि गलत हो रहा है. आप शक्लें देखते. आज सुबह अमित शाह समझा रहे थे, नरेंद्र मोदी शाम को समझा रहे थे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या किया गया. They were sitting with these sullen faces. वहां सरकार के लोग कह रहे हैं हमने आतंकवादी मार दिए, हमने उनके ठिकानों को ढेर कर दिया. ये लोग ऐसे बैठे हैं जैसे पता नहीं किसी छोटे बच्चे से उसका खिलौना छीन लिया. तो कहीं ना कहीं लोग भी देखते हैं. देखो, हम लोगों का क्या है, हम तो एनालाइज करते हैं, हम तो, हमारे लिए हर रोज की चीज है. ठीक है, एक कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन भी आ जाता है अपने एनालिसिस में, या यू सॉर्ट ऑफ डोंट look at it as a person who does this as a hobby will, right? We do it as a profession. Now,
A 19-20-year-old is thinking, okay, my country, my forces killed terrorists, why are these guys unhappy? And now he is going to start asking questions. तो ये तो जो भी आज उन्होंने पार्लियामेंट में आज और कल किया, ये तो मतलब सेल्फ गोल थे। मैंने कल सुबह ही लिखा था कि ये तो सेल्फ गोल पे सेल्फ गोल मारेंगे, और मार लिए। चलो अब लास्ट चीज, हमारे हम्म, प्रधानमंत्री पीएम मोदी, हम्म। उनकी 6-7 जो मेन पॉइंट्स थे उस वो बताए आप हमें आज। See, the main point he had was that एक तो चीज मैं बार बार बोलता हूं, मैं लिखूंगा भी, 10 की सुबह कुछ तो ऐसा हुआ है जो ना मीडिया में खुलासा हुआ इस बात का, ना उनकी ना हमारी, ना ये बात किसी कंट्री की लीडरशिप ने कही है, बट समथिंग हैज हैपेंड ऑन द मॉर्निंग ऑफ May 10th, क्योंकि आज मोदी जी ने एक चीज बोली, 9 की रात हम पर 1,000 ड्रोन्स और मिसाइल्स दागी गई, दे वर फायर्ड अपॉन अस एंड ऑल ऑफ देम वर इंटरसेप्टेड। आपको याद होगा 9 की रात हरियाणा में भी एक रूमर आया था, सिरसा के पास एक लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटरसेप्ट हुई थी, जी विच जी। पॉसिबली वाज ऑन इट्स वे टू दिल्ली। हम्म, मेरा ये मानना है कि 10th की मॉर्निंग को वी हैव हिट सम क्रिटिकल न्यूक्लियर स्पॉट इन पाकिस्तान, not a nuclear weapon. I'm not saying that we have hit them with a nuclear हाँ weapon. हाँ I'm saying हाँ, some sort of a puzzle of their nuclear arsenal that was hit on 10th, which really triggered a lot of the events, in the sense US getting involved, in the sense the Pakistani DGMO requesting for a ceasefire. वो एक मिसिंग पीस अभी तक किसी को नहीं पता, क्योंकि प्रधानमंत्री कह रहे हैं 9 की रात को बड़ा अटैक हुआ, मान लिया। ट्रंप कह रहा है कि अगर सीज फायर ना होता तो न्यूक्लियर तक बात जारी थी। हमारे लोग कह रहे हैं कि न्यूक्लियर ब्लैकमेल अब ये लोग नहीं कर सकते, तो मतलब कुछ तो हुआ है। कुछ तो हुआ। पाकिस्तान के टाइम, उस टाइम वो न्यूज रूमर्स चल रहे थे दैट देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ न्यूक्लियर स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर मीटिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक जी, न्यूक्लियर कमांड पाकिस्तान। उस टाइम भी बहुत रूमर्स थे। इंस्टाग्राम पे कुछ वीडियोस थी कि देखो भाई, कायराना हिल्स पे धुआं दिख रहा जान, है, ऐसा हुआ है, कुछ हुआ है। और हमारी मिलिट्री ब्रीफिंग में भी जब एक प्रेस वाले ने पूछा था एक मिलिट्री ऑफिसर से, डिड यू हिट कायराना हिल्स, एंड ही जस्ट गिव अ स्mirk एंड वेंट अवे। तो कुछ तो हुआ है, आई डोंट नो वील एवर नो अबाउट इट और नॉट, बट हाँ, ये एक पॉइंट था। हम्म, दूसरी चीज, आई थिंक इट्स वेरी क्लियर, कांग्रेस under the Gandhis, it cannot exist anymore. It's a national threat the way I see it. अगर देश के प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में कह रहे हैं कि भैया आप तो पाकिस्तान का नैरेटिव फॉरवर्ड कर रहे हो, आप उनके नैरेटिव के स्पोक्स पर्सन बन गए हो, इससे दुखदायक बात क्या हो सकती है? और लोग भी एग्री बेइज्जती करें, है, इट्स नॉट ये एन बेइज्जती एक्यूजेशन। है। बेइज्जती है बिल्कुल। और वो एक्यूजेशन भी नहीं है, उनकी हरकतें वैसी, लोगों ने उनको बोलते सुना है। वो राहुल गांधी चिल्ला रहे हैं 5 प्लेन गिरे, ही अनाउंस्ड इन हिज स्पीच, ही जस्ट सेड हमारे 5 प्लेन गिरे हैं। दिखा दे भाई तू कहां गिरे हैं। पाकिस्तान तो क्लेम नहीं कर पा रहा। पाकिस्तान के पास, अगर पाकिस्तान में गिरे होते, उनके पास डेब्रीज होती उनके एरिया में, है ना? कहाँ है? सो इमेजिन द डेस्परेशन दिस गाय हैज, that he's going so hard to prove that we have lost 5 jets and therefore we have lost the war. What is he Agar getting out of it? he just wants to prove that the government is on the back foot, that's all. उसको ये प्रूफ करने के ऑपरेशन सिंदूर फेलियर था, वो ये प्रूफ करना चाहता है मैंने 26/11 के बाद मेरी सरकार ने कुछ नहीं किया, वो सक्सेस है। पर इन्होंने अपना पहलगाम के बाद कुछ किया, उसमें 5 जेट्स खो गए, तो देखो ये तो फेलियर है। और इसमें उसका ये स्कीम चल भी क्यों जाता है कांग्रेस वोटरों के साथ? क्योंकि लोगों की पब्लिक मेमोरी बुरी है। एक तो हिंदू भी थोड़ा मतलब सोचता नहीं है लॉन्ग टर्म, ठीक है खिसका ना? हुआ है, थोड़े थोड़े हिंदू खिसके हुए हैं। किसके नहीं हुआ, मैं कहूंगा लॉन्ग टर्म थिंकिंग नहीं है। आज वहां पर राहुल गांधी की बहन कह रही है वो भारतीय लोग थे जो मरे थे। भैया उनका आधार कार्ड देख के थोड़ी उन्हें मारा था, उनका धर्म पूछ के उन्हें मारा था। उनका वोटर आईडी कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ का है ये देख के थोड़ी मारा था, उनका धर्म पूछ के उनसे मारा गया था। दे वर शॉट पॉइंट ब्लैंक। एंड व्हाई डू यू वांट टू डिनाई दिस? ये क्या अपीजमेंट पॉलिटिक्स है? आप किसको क्लीन चिट दे रहे हो? आप क्यों नहीं ये सदन में बात रखना चाहते कि पाकिस्तान इज लॉन्चिंग अ वॉर अगेंस्ट इंडियाज हिंदूज? व्हाई डोंट यू वांट टू से दैट? ये तो कोई ओपिनियन नहीं है ना किसी का, ये तो सरकार की कोई स्कीम नहीं है। वहां के जो महिलाएं थी, जो जिनके परिवारजन अटैक में मारे गए, वो खुद कह रही है धर्म पूछ के मारा है। पूछा कि तुम कलमा पढ़ सकते हो, नहीं पढ़ सकते हो, मार दिए।
बट भारतीय है, भारतीय भारतीय नहीं थे वो, पहले भारतीय थे, फिर भारतीय हिंदू थे। अगर आपको भारतीय कहना उन्हें कहिए, पर वो भारतीय हिंदू थे। और पीएम मोदी ने भी बोला है, ये तो बार बार ये बात बोली है कि इतना दुख और दर्द आपको पाकिस्तान के लिए, उतना प्यार आपके मन में इंडिया के लिए नहीं है। पाकिस्तान का तो इनका अलग ही कनेक्शन है। मतलब अगर किसी, मैं तो कहता हूँ ज्यादा पास्ट में भी मत जाओ। अब 2004 से 14 देखो, मैं मुंबई का एक एग्जांपल लेता हूँ। 2006 में बम ब्लास्ट होते हैं मुंबई में, कोई एक्शन नहीं होता। फिर 2008 में 26/11 होता है, ठीक है। 26/11 के 8-9 महीने बाद शर्मल शेख की मीटिंग होती है 2009 में, ठीक है। 2009 के बाद 2011 में इंडिया पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पूरी पाकिस्तानी लीडरशिप मोहाली आती है, जहां राहुल गांधी, सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह भी उनसे मिलते हैं। उस मैच के अप्रैल में था वो मैच। 3 महीनों के बाद जुलाई 2011 में फिर मुंबई में ब्लास्ट होते हैं। ये सिर्फ एक शहर की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली वगैरह अहमदाबाद की मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ मुंबई की क्रोनोलॉजी दे रहा हूं। आप बता दो क्या एक्शन लिया पाकिस्तान के अगेंस्ट? डिनर्स और डॉसियर्स। आज प्रियंका गांधी कह रही है कि 26/11 का अटैक था, उसमें हमने सारे आतंकवादी मार गिराए और जो एक था उसको फांसी लगा दी। तो भैया ऑप्शन क्या था? वो मासूम लोगों पे गोलियां चला रहे थे। आप क्या एक्सपेक्ट करते हो? और क्या होना चाहिए था उस टाइम? मारना ही था ना उन्हें। पर उन्हें लगता है देखो हमने तो मार के कुछ बड़ा काम कर दिया। ये तो मेंटालिटी है ना। और पाकिस्तान के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर तो है। आम आदमी पार्टी थी, वो नवजोत सिंह सिद्धू था, अब ठीक है थोड़ा परे हो गया है, ठीक है। वो क्या कहते हैं, वो कहता था क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करो। इन्हीं की पार्टी का था ना, चरणजीत सिंह चन्नी और नवजोत सिंह सिद्धू की राइवलरी थी। वो तो कहता था क्रॉस बॉर्डर ट्रेड करो। उसको भूल गए आप? तो बिरयानी खिलाना कसब को, वो सब भी सबको याद है, क्या थी कहानियां क्या नहीं थी। बट पॉइंट इज दे हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर पाकिस्तान। I still remember I was reading this book, Nehru's letter to his chief ministers, and he said one very problematic thing, which I keep sharing on Twitter also. He said that अगर इंडिया में कभी भी कोई कम्युनल इशू होता है, the burden lies हाँ, on the majority population, हाँ, not on हाँ, the minority population. क्योंकि yeah. majority population इतनी है, अगर minority अग्रेसर भी है तो वो desperate होकर अग्रेसर हो रही होगी, तो हमें उन्हें अकोमोडेट करना है। ये तो माइंडसेट है इंदिरा गांधी का। वैसे ही आप 71 वॉर के बाद शिमला अग्रीमेंट में देख लो क्या माइंडसेट था, पंजाब में क्या हुआ वो सब देख लीजिए। राजीव गांधी हैड नो क्लियर पाकिस्तान पॉलिसी, बट देन he also couldn't really do much about it. Then what did Sonia Gandhi and Manmohan Singh do? Absolutely nothing. तो मैं बार बार वही कहता हूँ कि अगर मैं किसी को कुछ सजेस्ट कर पाता, एक तो हमारी साइड उतने वो थिंकर्स भी नहीं है, फिल्म मेकर्स भी नहीं है ना। आप एक 5, 6, 7 साल लेकर एक अच्छी कास्ट के साथ लेकर यू क्रिएट अ हिस्ट्री, यू नो, इलाबरेट वेब सीरीज जस्ट टू टेल व्हाट इंडिया सफर्ड थ्रू। बहुत जरूरत है इस चीज की, और इन चीजों की शेल्फ लाइफ भी ज्यादा होती है। और एक और चीज है, जो आपने देखा, ये बार बार बोल रहे हैं इंटेलिजेंस फेलियर, इंटेलिजेंस फेलियर। आप कहाँ थे आज? वो व्हाट द डीएमके की भी एक एमपी ने बोला। पर हमें इनसे कोई पूछे कि आपके तो पीएम हाउस के अंदर ही इंदिरा गांधी जी के ऊपर गोलियां मार दी गई, वहां इंटेलिजेंस लेवल फेल हुआ। राजीव गांधी जो इतने प्राइम प्राइम मिनिस्टर हमारे गए हैं, उनको उनको उड़ा दिया हाँ, गया। असैसिनेट, हाँ। हाँ, तो इंटेलिजेंस फेलियर की ये तो बात करे ही ना ना। मेरे को ना हमेशा एक क्वेश्चन जो है हमेशा सताता है। इंदिरा गांधी वाज असैसिनेटेड इनसाइड हर रेजिडेंस। हम्म, बाद में हमें थ्योरी दे दी गई कि उन्होंने अपने बॉडीगार्ड्स चेंज करने से रिफ्यूज कर दिया इन द हाँ, आफ्टरमाथ ऑफ ऑपरेशन ब्लू स्टार। हमें ये कहा जाता है दैट शी ट्रस्टेड हर बॉडीगार्ड्स इन एवरीथिंग। I don't think the kind of situation that was in India then, her advisors would have agreed for her to take such a security risk. मुझे ऐसा नहीं लगता। As much as an iron lady she was, I'm sure she had equally capable advisors as well. तो मुझे कई बार ये भी एक सवाल उठता है, ये किसने थ्योरी दे दी कि हाँ इंदिरा गांधी ने मना करा था अपने बॉडी गार्ड्स चेंज करने से? ग्रेट। हम किसी से कंफर्म नहीं कर सकते। हम बॉडीगार्ड से कंफर्म नहीं कर सकते, हम इंदिरा गांधी से कंफर्म नहीं कर सकते। तो ये चीजें ना पेडल कर दी मिस्ट्री जाती हैं। रहेगी, हाँ, मिस्ट्री रहेगी।
बट स्टिल मिस्ट्री। बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी निकली हैं रिगार्डिंग इंदिरा गांधी डेथ, देन राजीव गांधी डेथ, देन XYZ, माधवराव सिंधिया, देन पायलट वो जी, वो तो चलो, वो तो इतनी सारी चीजें निकली, कुछ क्या हुआ है कुछ समझ ही नहीं आया। अच्छा, आपने ना एक और चीज लिखी थी, व्हाई दैट इंडिया कैन नॉट विन द इंफॉर्मेशन वॉर, एंड यू हैड ब्लेम्ड, व्हाट वाज इट? no. I'll tell you, we cannot. I'm being very upfront. डेमोक्रेसी के एक स्पेक्ट्रम इमेजिन करिए, एक एंड पर चाइना है, दूसरे एंड पे अमेरिका है, इंडिया कहीं बीच में है, क्लोजर टू अमेरिका, मच क्लोजर टू अमेरिका देन ऑफ कोर्स टू चाइना. Western publications don't look at what the social media narrative is. They look at what the opposition of that country is saying. आपका लीडर ऑफ ऑपोजिशन पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोल रहा है कि 5 प्लेन तो भारत के गिरे हैं, बिना किसी तथ्य के, बिना किसी सबूत के, गया आपका नैरेटिव. पाकिस्तान प्राइम टाइम में उसे चलाएगा, देखो ये तो ये कह रहा है सरकार झूठी है, देखो चिदम्बरम कह रहा है आतंकवादी तो पाकिस्तान से आई नहीं थी, सरकार झूठी है. अब कहां से जीतोगे इंफॉर्मेशन वॉर? इसमें आप किसी आईटी सेल को ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी सोशल मीडिया इंचार्ज को ब्लेम नहीं कर सकते, आप किसी पार्टी को ब्लेम भी नहीं कर सकते. आप कहोगे चलो बीजेपी अपना काम नहीं कर रही है, सब कुछ है, ठीक है. आपके एमपीज पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोल रहे हैं, जो प्रिविलेज होता है उन्हें वहां बोलने का, देयर इज नथिंग यू कैन डू. राहुल गांधी कह रहे हैं आप मेरी सुनते, तो तुम तो चाइनीज ड्रोन्स की भी बात कर रहे थे. और ऐसे लग रहा था कहीं ना कहीं तुषार कि दे आर ट्राइंग टू प्रोटेक्ट द चाइनीज प्लेन्स एंड आर्म्स एंड No, no, एम्युनिशन. no. No, my greater worry is my greater worry is कि बार बार बोल रहे हैं कि आपकी असली लड़ाई चाइना से है. uh, it's still July. We have a long summer ahead of us, at least 3 more months. My concern is there might be some collision between the opposition and the CCP. We might see some aggression from China, if not this year, probably the next year or the year after that. बट 29 से पहले कुछ तो होगा, बिकॉज पार्लियामेंट में बार बार एक ही एमपी, बार बार एक ही पार्टी के एमपी बार बार ये कहें कि आपका असली विलन तो चाइना है, आप चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं कर रहे, जैसे दे आर प्रोवोकिंग. एंड बाद में इफ चाइना टेंड्स टू बिकम एन एग्रेसर, आई एम बॉर्डरलाइन ऑन द इफ थ्योरी, दिल से देखो हम तो कहा था, देश को कहेंगे देखो हमने तो कहा था, ये सरकार को कुछ अता पता नहीं है. तो वो मुझे एक चिंता है कि probably what happened in the last 2 days was also a hint to the leadership of this country that something is going to be up before 2029. Oh God. It's so scary. And when you look at them, all of them in the Twitter full, and मेरे को ये बात समझ नहीं आती, आपको अगर राहुल गांधी को पीएम बनाना, तो आप ये नहीं दिखा सकते रोज ऑन सोशल मीडिया कि आज वो जिमिंग कर रहा है, तो आज उसने कोट पैंट पहना है, तो आज ही इज वेयरिंग अ ब्लैक बैंड और यू शोइंग हिज मसल्स, एंड दे हैव नथिंग टू शो कि तेलंगाना में क्या किया है, हिमाचल में क्या कर रहे हैं, कहाँ. देखो एक सिंपल सी चीज है, ये मीडिया वाली ये चीज समझते नहीं है. बियॉन्ड ऑल द हेडलाइंस, बियॉन्ड सोशल मीडिया, एक ना नेचुरल रेजोनेंस होती है एक वोटर और एक लीडर के बीच में. एक नेचुरल रेजोनेंस होती है और वो बहुत सब्जेक्टिव होती है. आपके लिए वो रेजोनेंस अलग होगी, मेरे लिए अलग होगी, मेरा कोई दोस्त होगा उसके लिए अलग होगी. कोई दो लोगों की रेजोनेंस सिमिलर हो सकती है, सेम नहीं. मुझे नहीं लगता राहुल गांधी कभी वो रेजोनेंस बना ही पाए, क्योंकि ना वो किसी एरिया को अपना बना पाए कि हाँ ये मेरा गढ़ है, इस एक गढ़ की 5 सीटें मैं पार्लियामेंट की जीत सकता हूँ, इस स्टेट में अगर ये एरिया है ये तो मैं खुद ही अपने बलबूते पे जीत सकता हूँ. नहीं, किसी स्टेट के वो चीफ मिनिस्टर नहीं बने, किसी स्टेट को वो खुद अपने मैनेजमेंट पे जीत नहीं सकते, तो वो है कहाँ के. आफ्टर 20 years इन पॉलिटिक्स, फडनवीस आज कह सकते हैं मैं महाराष्ट्र जीता हूँ, योगी कह सकते हैं मैं यूपी जीता हूँ, ठीक है, नवाब सैनी कह सकते हैं, नायब सैनी कि मैं हरियाणा जीता हूँ, मोदी जी शायद कह सकते, हाँ ममता बनर्जी तक कह सकती है मैं, मेरा कुछ बंगाल में होल्ड है, अखिलेश यादव कह सकते हैं हाँ भाई मेरा यादवों में होल्ड है, मैं एक इलेक्शन को एटलीस्ट फाइट कर सकता हूँ, ठीक है. कमलनाथ भी ये बोल सकते थे कि मैं मध्य प्रदेश में 40% वोट शेयर तो ला सकता हूँ. राहुल गांधी क्या कर सकता है? वो अपने खानदान के नाम पे चल सकता है. तो अगर खानदान का नाम इस्तेमाल करना है
तो खानदान का फिर इतिहास भी तो सामने आएगा। आप सिलेक्टिव थोड़ी हो सकते कि मुझे अपने खानदान का नाम अच्छा लगता है तो मैं उसे यूज करूंगा, पर उसका इतिहास थोड़ा बुरा है तो उसको चलिए अवॉइड करिए, ऐसे थोड़ी होता है। पर आज it was मैं भी 6 o'clock अपने पॉपकॉर्न लेके बैठ गई। मैं कहा चलो आराम से मोदी जी को की स्पीच सुनते हैं। एंड ट्विटर वाज फुल ऑफ रेल दिया, पेल दिया, मोदी जी फायर, ये वो। It was great fun and everyone was waiting. My staff was also watching it. Everybody, मोदी जी के बारे में सब कोई इंटरेस्ट लेते हैं। One person, one राइट। leader. चलो, thanks so much, तुषार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।